السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے، لاک ڈاؤن سے مرحلے وار طریقے سے باہر نکلنے اور اقتصادی سرگرمیاں تیز کرنے کی تدابیر پر وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی۔ تقریباً 6 گھنٹوں تک چلی اس میٹنگ میں کہا کہ کورونا وائرس کو روکنے کے لیے کے بعد بھی لاک ڈاؤن کو جاری رکھنا ہوگا۔ اس میٹنگ میں وزیراعظم مودی نے اقتصادی سرگرمیوں کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ملک کی معیشت کو لے کر بھی مشورے دیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں اور ریاست کورونا وائرس کو ختم کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ریاستوں کو معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے ساتھ دینا ضروری ہے، ہم اس پر ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ معیشت کو کھولنے کا کام کرنا ہے اور اس پر توجہ دینی ضروری ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک میٹنگ میں وزیراعظم نے ملک میں کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات میں کوئی سستی نہیں آنی چاہیے۔ چیف منسٹرز کے ساتھ کورونا مسئلے پر وزیراعظم کا یہ 5واں اجلاس تھا، جس میں ریاستوں کی جانب سے 2 کلیدی مطالبات پیش کیے گئے۔ پہلا، کورونا سے متاثرہ اضلاع کی شناخت اور ریڈ، آرنج اور گرین کی زمرہ بندی کا ریاستوں کو اختیار دینا، اور دوسرا مطالبہ لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والی معاشی نقصانات کی پابجائی کے لیے معاشی پیکیج کی فراہمی سے متعلق تھا۔ 4 ریاستوں بشمول پنجاب اور آسام نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا مطالبہ کیا، جبکہ دیگر ریاستوں جیسے تمل ناڈو اور تلنگانہ نے ریل اور فضائی ٹریفک کو ابھی شروع نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر بنگال ممتا بنرجی نے یہ الزام عائد کیا کہ مرکز کی جانب سے امتیاز بڑھتا جا رہا ہے اور سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اپنے ابتدائی کلمات میں وزیر اعظم نے کہا کہ غور و خوض کے ساتھ ایک رائے قائم کرنے سے قبل اس مرتبہ ہم نے تمام چیف منسٹرز کو بولنے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں مختلف اسلامی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی مشترکہ فیڈریشن نے مذہبی دورے پر آنے والے بیرونی ممالک کے 130 مسلم شہریوں کو سب جیل منتقل کرنے ریاستی حکومت کے اقدام کی مذمت کی۔ تنظیم نے الزام عائد کیا کہ سب جیل میں بنیادی سہولتیں تک موجود نہیں ہیں۔ تمل ناڈو پولیس کا الزام ہے کہ بیرونی ممالک کے ان مسلم شہریوں نے ویزا شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مذہبی تبلیغ میں مصروف رہے۔ فیڈریشن کے مطابق ان 130 مسلم قیدیوں میں فرانس، ایتھوپیا، بنگلہ دیش، میانمار، ملیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے شہری شامل ہیں۔ انہیں ابتدا میں پوز ہل سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا، تاہم اب انہیں برطانوی دور حکومت کی تعمیر کردہ سیدا پیٹ سب جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے معروف شہر الہ آباد میں قائم الہ آباد یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی کی تجویز کو یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل نے مسترد کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یونیورسٹی کی کونسل نے مرکز کے زیر انتظام چلائی جانے والی اس یونیورسٹی کے نام کو ضلع الہ آباد کے تبدیل شدہ نام پریاگ راج سے تبدیل کرنے کے خلاف فیصلہ کیا۔ کورونا وائرس کے بعد جاری لاک ڈاؤن کے بعد یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس منعقد نہیں ہو سکا، تاہم کونسل کے 15 ارکان سے بذریعہ ای میل ان کی رائے دریافت کی گئی، جس پر 12 ارکان نے اپنے جواب میں یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی کی مخالفت کی، جبکہ 3 ارکان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے آج ایک عرضی داخل کرتے ہوئے ایسی ہدایت جاری کرنے کی استدعا کی گئی کہ مولانا سعد کے خلاف درج کیسز کی تحقیقات کو دہلی پولیس سے فوری اثر کے ساتھ NIA کو منتقل کیا جائے۔ تبلیغی جماعت کے رہنما پر دہلی کے نظام الدین مرکز میں اجتماع کے انعقاد کا الزام ہے، جو مبینہ طور پر ان احکام کی خلاف ورزی ہوئی جو کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے بڑے اجتماعات کے خلاف جاری کیے گئے تھے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس قابل لحاظ وقت گزر جانے کے باوجود مولانا سعد کو گرفتار کرنے میں ناکام بھی ہے۔ ہائی کورٹ میں 13 مئی کو ہنگامی سماعت بھی متوقع ہے۔ یہ عرضی ممبئی کے وکیل گھنشیام اپادھیائے نے داخل کی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے خلل کے درمیان فیول کے صارفین کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے مزید پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اس ماہ کے آخر میں پیٹرول اور ڈیزل کی چلر قیمت پر روزانہ نظر ثانی کی دوبارہ شروعات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کے ذرائع نے کہا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن برخاست کیا جائے گا یا حکومت کی جانب سے اس ماہ کے آخر تک مزید نرمیوں کا اعلان کیا جائے، آٹو فیول کی قیمتوں پر روزانہ نظر ثانی شروع کی جا سکتی ہے۔ فی الحال کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں ترمیمی شہریت قانون یعنی CAA کے خلاف گزشتہ سال احتجاجوں کے دوران پیش آئے تشدد کی تحقیقات کرنے والی خصوصی ٹیم نے 44 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف 20 دسمبر کو احتجاج کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر کئی افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا۔ اتر پردیش میں BJP کی آدتیہ ناتھ حکومت نے کئی مقامات پر اس طرح کے کیس درج کیے ہیں، جن میں دارالحکومت لکھنؤ شامل ہے۔ فلم اسٹار سونو سود نے کورونا وائرس وبا کے سبب جاری ملک گیر لاک ڈاؤن کے دوران شہر میں پھنسے سینکڑوں مائیگرنٹ ورکرز کے لیے اپنے وطن کو واپس ہونے بسوں کا انتظام کیا ہے۔ انہوں نے مائیگرنٹس کے لیے سفر اور غذائی پیکٹس کا خرچ برداشت کیا ہے۔ کرناٹک اور مہاراشٹر کی حکومتوں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد جملہ 10 بسیں تھانے سے
आज गुलबर्गा के लिए रवाना हुई। सोनू का मानना है कि जारी आलमी बहरान में हर हिंदुस्तानी अपनी फैमिलियों के साथ रहने का मुस्तहिक है और इसके लिए उन्होंने माइग्रेंट्स को अपने घर पहुंचने में मदद करने से कबल रियासती हुकूमतों से इजाज़त तलब की। शुमाली सिक्किम में एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज के जवानों और चीनी पीपुल्स लिबरेशन के जवानों के आमने सामने आने के बाद लद्दाख सरहद पर चीनी हेलीकॉप्टर देखे जाने का मामला सामने आया है। इसके फौरन बाद हिंदुस्तानी फिजाइया अलर्ट हो गए। फिजाइया के जंगी तैयारे फौरन चीनी हेलीकॉप्टरों के पीछे लग गए और इन्हें घुदेड़ दिया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त हुआ जब शुमाली सिक्किम में हिंदुस्तानी फौज और चीनी फौज के जवान आमने सामने आ गए थे। एएनआई के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया कि चीनी फौजी हेलीकॉप्टर हकीकी कंट्रोल लाइन के बहुत करीब से उड़ान भर रहे थे। इनके मूवमेंट को ख़त्म करने के बाद हिंदुस्तानी फिजाइया के जंगी तैयारों ने इलाके में गश्त लगाई। कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में पिछले 48 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के दरमियान आज से मुल्क के चुनिंदा शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। इंडियन रेलवे मंगल से मुसाफिर ट्रेनों की सर्विस को जुज़वी तौर पर बहाल करते हुए 15 शहरों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने जा रही है, जिनके लिए राजधानी एक्सप्रेस के बराबर किराया लिया जाएगा। ये ट्रेनें रास्ते में कुल 48 स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें सवार होने के लिए मुसाफिरों को रवानगी से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और पहली बार एक दिन में 4000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के 4213 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद 63,000 पार कर गई है और इस दौरान 97 अफराद हलाक भी हुए हैं। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 2206 हो गई है। दिल्ली पुलिस जांच में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के ऑडियो क्लिप के फर्जी निकलने की खबर देने वाले इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर को दिल्ली पुलिस ने तलब कर लिया है। इसकी इत्तला खुद इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 11वीं की इशात में दी है। दिल्ली पुलिस इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को मुस्तरद भी कर चुकी है, जबकि अखबार अपनी खबर पर कायम है। दिल्ली पुलिस ने जहां इस खबर को हक़ाइक़ के लिहाज से गलत और गुमान पर मबनी करार दिया है, वहीं इतवार की शाम इसने इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने की हिदायत दी। साथ ही धमकी दी कि अगर हुक्म की तामील ना हुई तो ताज़रात हिंद की दफ़ा 74 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें जेल भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने ईमेल के जरिए यह नोटिस इंडियन एक्सप्रेस के सिटी एडिटर और चीफ रिपोर्टर को भी भेजी है। कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के कौमी सदर और कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान नदीम जावेद ने कहा कि कोरोना चीन से एक वबा की शक्ल में चला था, लेकिन हिंदुस्तान पहुंचने पर बीजेपी और गोदी मीडिया ने हिंदू और मुसलमान बना दिया है और गोदी मीडिया के जरिए तबलीगी जमात के नाम पर जहरीला कम्युनल वायरस ट्रायल शुरू किया गया, जो आज की तारीख में गाँव सतह तक पहुँच चुका है, जिसका खामियाजा कहीं सब्जी वाले मुसलमान तो कहीं गरीब मुसलमानों को नफरत के नाम पर भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि बीजेपी हुकूमत कोरोना पर पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, दूर दराज फंसे हुए मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल सफर करके अपने घरों को किसी तरह पहुंच रहे हैं। वहीं रेलवे ट्रैक पर दर्जनों मजदूर मालगाड़ी की जद में आकर जाँ बहक हो जाते हैं। इसके अलावा जिन मजदूरों को वापस लाया भी जाता है तो किराए के नाम पर फर्जी तौर पर छूट का वावेला मचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मजदूरों से पूरा किराया वसूल किया जाता है। सब कुछ जानने के बाद भी गोदी मीडिया फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर खामोश है। आलमी वबा कोरोना वायरस के चैलेंज के माहौल में बहरीन का एक खानदान दावत इफ्तार में जाने की ख्वाहिश तर्क नहीं कर पाया और एहतियात बरतते बगैर 16 अराकीन के साथ वायरस लेकर लौटा। दरअसल जिस इफ्तार में यह खानदान शामिल हुआ वहां इनका एक रिश्तेदार भी आया था जो कोरोना से मुतासिर रहा होगा और इसी के राब्ते में आने पर ये 16 लोग मुतासिर हुए। बहरीन के महकमा सेहत ने हफ्ते को देर रात ट्वीट करके ये इत्तला दी। वजारत ने बताया कि इफ्तार में शामिल इन लोगों ने वायरस से बचने के एहतियाती इक़दामात मसलन हुजूम में शिरकत से बचना, मास्क पहनना और समाजी फासले की पैरवी नहीं की और इसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग वायरस लेकर लौटे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की कि वो फिलहाल पैसेंजर ट्रेन खिदमात को बहाल ना करें। उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रेन खिदमात के शुरू करने से अवाम की नकल व हरकत शुरू हो जाएगी और इससे कोरोना के मुआयनों और क्वारंटाइन में रखने के मसाइल पैदा हो जाएंगे। चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म की जानिब से रियासती चीफ मिनिस्टरों के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए ये बात कही। वज़ीर आला ने हवाला दिया कि कोरोना के असरात बड़े शहरों बशमुल मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में ज़्यादा हैं। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म से ख्वाहिश की कि वो मुसाफिर ट्रेनों की खिदमत को बहाल ना करें। इन ट्रेनों को कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के इक़दामात के तौर पर रोक दिया गया था। वाज़रे के रेलवेज ने ऐलान किया है कि मंगल से जुमला 15 ट्रेनों को बहाल किया जाएगा जो राजधानी रूट पर दिल्ली से मुल्क के कुछ बड़े शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इनमें दिल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेन भी शामिल है। चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी से कहा कि इस मौके पर मुसाफिर ट्रेन खिदमत को बहाल करने के नतीजे में एक से दूसरे मुकाम तक अवाम की नकल व हरकत शुरू हो जाएगी। इसके नतीजे में वायरस फैलने का अंदेशा है।
तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक तेजी के साथ इजाफा होने लगा है और आज एक दिन में कोरोना के 180 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक बुलेटिन में कहा गया है कि कोरोना के ये तमाम केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद से ताल्लुक़ रखते हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि आज एक दिन में जुमला 50 अफराद को इलाज और सेहतियाबी के बाद घरों को भेज दिया गया है। इस तरह अब तक रियासत में डिस्चार्ज किए गए अफराद की तादाद 801 हो गई है। अब तक रियासत में 1275 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई और अब भी रियासत में इस वायरस की वजह से फौत होने वालों की तादाद 30 बरकरार है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान रमज़ान की रौनकें तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बाजार खूब सजाए जाने लगे हैं, जबकि मसाजिद गैर आबाद है। पुराने शहर के अलावा कई इलाकों में बाजार सजाए जा रहे हैं और सुबह से शाम 6 बजे तक बाज़ारों में गहमा गहमी देखी जा रही है। बाज़ारों में वो तमाम अशिया दस्तयाब होने लगी है जो कि माह रमज़ान में फ़रोख्त होती है। रमज़ान के दौरान हलीम की किल्लत महसूस की जा रही है, लेकिन हर मोहल्ले में हलीम दस्तयाब होने लगी है। अलाउद्दीन शहर बिलखुसूस पुराने शहर के इलाकों में फलों के अलावा इफ्तार से ऐन क़ब्ल दही बड़े और तलन की अशिया की फ़रोख्त भी हो रही है। शहर के बाज़ मुकामात पर हलीम फ़रोख्त करने वालों पर पुलिस के मुकदमात के बावजूद भी बाज़ारों में चहल पहल बढ़ती जा रही है और समाजी फासले का ख्याल किए बगैर खरीदो फरोख्त की जा रही है। इसके बावजूद मुतालिका महकूमा जात रमज़ान के पेश नज़र इन सरगर्मियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो अपने तौर पर इनका ख्याल रखें, क्योंकि माह रमज़ान जो कि इबादतों का महीना है, इसके दौरान मसाजिद बंद हैं। ऐसे में बाज़ारों को आबाद करना दुरुस्त नहीं, इसीलिए बाज़ारों का रुख करने से इज्तिनाब की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाज़ारों में हुजूम होने लगे तो सूरत हाल बिगड़ भी सकती है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान अब जबकि शराब की दुकानात खोलने की इजाज़त दी गई है, पान शॉप मालिकीन ने भी पान की दुकानात को खोलने की इजाज़त का मुतालबा किया है। पान शॉप मालिकीन ने बज़रिए ट्विटर मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर को भी वाकिफ़ करवाने की कोशिश का आगाज़ कर दिया है। पान की दुकानात मुसलसिल बंद रहने की वजह से पान मसाला और दीगर अशिया ख़राब हो रही हैं, जिसके सबब इस सनत को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। हर पान की दुकान में 50,000 से 1 लाख रुपए के मसाले जात का नुकसान हुआ है। पान शॉप मालिकीन ने मुतालबा किया है कि कम से कम 2 घंटे दुकानात खोलने की इजाज़त दी जाए। मालिकीन ने समाजी दूरी को बरकरार रखने का यकीन दिलाया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस ख्याल का इजहार किया कि जून या जुलाई में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस अपने उरूज पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सवाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस अपने उरूज पर कब पहुंचेगा। इसका जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि जो डाटा मिल रहा है इसको किस अंदाज में तैयार किया जा रहा है। फिलहाल कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन की जानिब से डाटा का जायजा लिया जा रहा है। बेशतर माहिरीन की राय यही है कि हिंदुस्तान में जून या जुलाई में कोविड-19 अपने उरूज पर पहुंचेगा। जुनूब मगरबी मानसून के जुनूब मशरकी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों, जनूबी अंडमान और निकोबार जज़ायर में 16 मई तक दाखिले के लिए हालात साजगार हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में कुछ मुकामात पर हल्की से औसत बारिश हो सकती है और आज़म तरीन दर्जे हरारत 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। शहर हैदराबाद में आसपास में शाम या रात के वक्त गरज चमक हो सकती है और दर्जे हरारत 38 डिग्री के आसपास हो सकता है। इस दौरान तेलंगाना में कुछ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़म तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री नलगुंडे में रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि ज़िला निर्मल के भैंसे में अवाम के 2 तबक़ात के दरमियान संगवारी का जो मामूली वाक़या रूनुमा हुआ, इस पर हुकूमत गहरी नज़र रखी हुई है। नोट में वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने सुपरिटेंडेंट पुलिस निर्मल से फ़ोन पर बात की और इन्हें इस ताल्लुक़ से जामे इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक दरकार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई की गई और वाक़े के फौरी बाद दरकार इक़दामात के जरिए मामूल के हालात की बहाली को यकीनी बनाया गया और पुलिस फोर्स मुतय्यन कर दी गई। उन्होंने कहा कि सूरत हाल फिलवक्त मुकम्मल काबू में है और इन्हें अवाम पर जोर दिया कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा आज फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी बन गई। यह अवार्ड इन्हें मां बनने के बाद टेनिस कोर्ट को अपनी शानदार वापसी पर दिया गया है। सानिया ने इस साल के 3 रीजनल ग्रुप 1 नामजद उम्मीदवारों के लिए डाले गए जुमला 16,985 वोटों से जायद 10,000 हासिल करते हुए एशिया और ओशियानिया अवार्ड जीता। फेडरेशन कप अवार्ड के विनर्स का तयन ऑनलाइन वोटिंग के जरिए होता है, जिसमें मदा और पुरसितार हिस्सा लेते हैं। ये वोटिंग यकुम में से 1 हफ्ते तक चलाई गई। सानिया को ज़्यादा 60% वोट हासिल होना फेडरेशन कप कंपटीशन में इंडियन स्टार की आलमी मकबूलियत का सबूत है। सानिया ने 4 साल के वक्फे के बाद फेडरेशन कप में वापसी की और हिंदुस्तान को तारीख में पहली मरतबा प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई होने में मदद की थी। अक्टूबर 2018 में अपने बेटे अजहान की पैदाइश के बाद सानिया रवां साल जनवरी में टेनिस कोर्ट में वापस हुई थी। हर जुमरे के विनर्स को इनामी रकम के तौर पर $2,000 अमेरिकी हासिल हुए, जिसे 33 साला हैदराबादी स्टार ने कोविड-19 वबा के खिलाफ लड़ाई के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए अतिया देने का फैसला किया है।